Hi everyone, let's start with the 8th lecture of strength of materials. We were discussing about indeterminate beams, how to draw axial loading diagrams on indeterminate beams, and how to find stresses in subbars. So we'll start with the question today's lecture. The first question of today is, load of 100 Newton is acting here at a point B, and the load of 300 Newton is acting here at a point C. This is a point A, this is a point B, this is AE, this is A by 2 comma 2E, and this is again A and E. Okay, what else? This is length L, this is also length L, this is also length. So two nodes are acting at a point. One is acting at a point B and one is acting at a point C. We have 100 kN at B and 300 kN at C. We can see. Also, it is given question that area is 200 mm square and this E is 200 gigapascal and L equal to 1. So you have to find, first is maximum tensile load and maximum compressive load, and you have to find maximum axial stress. Maximum axial stress. It is not written as compressive or tensile, but it's just asked maximum axial. So whatever the magnitude is, biggest magnitude is you have to take. So basically हमने कल ऐसा एक क्वेश्चन किया था. We have done such type of question yesterday in our last lecture, but I'm doing it again to clarify all the doubts. I will not use the long method for this. You better know that for long method you have to use two equations. First is summation in force and horizontal direction is 0. Second, you have to equalize deformation of AB to 0. Okay, but in this I will use the direct method. Let me assume, हम assume करते हैं पहले कि जो AB है, उसमें जो फोर्स लगा है, एक 100 लगा है लेफ्ट साइड में, एक लगा है 300 राइट साइड में. तो नेट किधर होगा? नेट होगा 200 टुवर्ड्स द राइट साइड. ओके, 200 towards the right side. So we can assume that net force right side will take the reactions direction opposite RA, and this is the reaction direction RB. You can say RB. Now, as I told you, there is a direct way to find it. How? RA will be equal to first if you travel from start from RA, the 100 kN का जो load है वो same direction में है, तो we'll take a negative sign into the distance between the 100 kN node to the opposite support is 2L. Similarly, if you go further right, 300 का जो लोड है वो अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आएगा इंटू L डिवाइड बाई 3. ये आप क्या आ गया 100 डिवाइड बाई 3, 33.33 किलोमीटर. ओके, नाउ सेकंड इज RB. RD की तरफ से आप चलोगे, दिस इज ऑल्सो T. RD की तरफ से चलोगे तो 300 किलोमीटर का लोड अपोजिट डायरेक्शन में है, सो इट विल प्लस इंटू अपोजिट सपोर्ट से उसका डिस्टेंस वो हो जाएगा 2L. ओके, एंड देन वी हैव 100 न्यूटन लोड एंड अपोजिट से उसका डिस्टेंस L हो गया, अगेन 3L. 100 जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा, सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आएगा. ओके, एंड इट विल बी 500 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू 166.67. आपने लोड निकाल लिया. इफ यू फाइंड आउट द लोड, अच्छा इसके लिए जो कंडीशन थी वो थी कि A1 E1 इक्वल टू A2 E2 इक्वल टू A3 E3 होना चाहिए. वो सेटिस्फाई हो रही है क्या? फर्स्ट इज A, सेकंड में भी A/2 इंटू 2E A हो रहा है, थर्ड भी A, तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन. आप ये लगाने से पहले आप हमेशा ये चेक कर लें, अदरवाइज ये आप वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे ये नहीं होगा.
ठीक है। ना हम एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम टेंसाइल लोड निकालना है और मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड निकालना है। तो उसके लिए मैं एक्सियल लोडिंग डायग्राम के लिए मैं लाइन खींच लेता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। ओके। एट ए पॉइंट पे कितना फोर्स है, कितना रिएक्शन है, 33.33। कितना, प्लस में 33.33। बी तक जाऊंगा 33 मिलेगा। अब बी सी में एक क्रॉस सेक्शन काटेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो प्लस 33.33 प्लस 100, 133.33। ये आपको आना चाहिए। अब तो ये 33.33 किलोमीटर। तीसरा, अगर आप जाएंगे 300 किलोमीटर, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेसिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आना चाहिए 167, 166.67। ये हो गया एक्सियल लोडिंग डायग्राम, ALD हो गया एक्सियल लोडिंग डायग्राम ऑफ दिस बीम। अब इसने पूछा है मैक्सिमम टेंसाइल लोड, तो मैक्सिमम टेंसाइल लोड कितना है, 133.33। तो ए का जो आंसर है वो हो गया 133.33 किलोमीटर। बॉम्बे का आंसर मैक्सिमम कंप्रेसिव 166.67, मैक्सिमम कंप्रेसिव ये वाला हो जाएगा। सी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एक्सियल, मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस निकालेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया भी अलग है, पी बाई ए करोगे तो डिफरेंट आएगा, तो आप पी से जज नहीं कर सकते, लोड से जज नहीं कर सकते किसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो स्ट्रेस इन ए बी निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस इन बी सी निकालना पड़ेगा, स्ट्रेस इन सी डी निकालना पड़ेगा, तीनों निकालने पड़ेंगे। स्ट्रेस इसमें कितना हो गया, 33.33 डिवाइड बाई एरिया, और ये हो गया 133.33 डिवाइड बाई ए इंटू 2, और ये हो गया 166.67 डिवाइड बाई एरिया, एरिया ओनली। ओके, क्योंकि इसका A/2 था। तो अब आप यहाँ से कुल मिला के देख सकते हैं कि ये वाला ही हाईएस्ट आएगा, तो इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। इट विल बी अराउंड 266.67 आई गेस। और आई कैन से वन थिंग मोर, we have to keep the mind units 133.33. This is 133.33 kilonewton. So we have to multiply by 1000, it will be Newton, divided by area. How much is area? Area is 200 mm square, 200 mm square. So Newton per mm square में आंसर आएगा इसका कितना आएगा, 1333.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल। ये कैसा हो गया, टेंसाइल, कैसा हो गया, टेंसाइल। सो ये इसका आंसर हो गया। एंड सो वी गेट दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, फर्स्ट यू शुड ट्राई दैट, स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स, यूज योर माइंड, कैसे होगा क्वेश्चन। इफ यू यूज योर माइंड, कैलकुलेट एवरीथिंग, हो रहा है तो डू इट, check your answers. This is the best way to watch a video and do it, analyze it. It is not like कि मैं कराए जा रहा हूँ आप देखे जा रहे हैं। Stop the video and analyze। इसलिए मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ कि you should use your brain, that will enhance your capacity। not मैं क्वेश्चन करूँगा और आप देखेंगे उससे नहीं होगा कुछ भी। You should use your brain, देख किस क्वेश्चन में क्या करना है, then you will develop a thinking that how to approach questions। Okay, so our next is like, next question is a very good question, very very good question। Look, this is 2 mm, and here point we have 30 kilonewton load. This area is 2AE. This is A. This is AE. Okay. Now this is AE. And now this is point is A. This point is B. We can see this is C and D. So अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एरिया है 100 mm स्क्वायर, इसका जो E है वो है 100 गीगा पास्कल, एंड इसका जो L है वो है 1 मीटर। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो इसके जैसा ना मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले एक्सियल लोडिंग डायग्राम में, जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, उसमें हम करते थे कि फाइंड आउट द लोड
जिसके लिए ये वैल्यू 2 mm की फिलअप हो जाए। इस केस में मान के चलते थे कि रिएक्शन एट आर डी विल बी जीरो, हम ये मान के चलते थे। क्यों मान के चलते थे? इसमें तो ये बोल रहा है कि रिएक्शन एट सपोर्ट निकालो, हम इसलिए ऐसा मान के चलते थे कि उस क्वेश्चन में हम ये मानते थे कि जो इलोंगेशन है वो सिर्फ 2 mm ही होगा, 2.5 mm नहीं होगा, 2.53 mm नहीं होगा। इफ द elongation is only 2 mm, the reaction provided by the support D will be zero। जब तक ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है या ये जो बीम है, ये जाके इस सपोर्ट को प्रेस नहीं करेगा, प्रेस नहीं करेगा, मतलब ये प्रेस नहीं, अभी ये सिर्फ, अगर ये देखो इन दोनों के बीच में गैप, this gap is fulfilled and this like this only touch this hand will not apply any force on it, this will not apply any force on it. But if I say this gap is 2 mm and the gap if the gap will be more, if the deformation this will be 2 mm more than 2 mm by the load, it will go to 2 mm, after that apply the force, try to achieve 1 mm more deformation as it was acquired to achieve the 3 mm deformation। ये 3 mm के लिए बना था, 3 mm के लिए, ठीक है, 3 mm के लिए बना था, लेकिन 2 mm अचीव कर पाया। क्या करेगा? 1 mm इसको खिसकाने की कोशिश करेगा, खिसकेगा तो है नहीं, फिर क्या करेगा? इसको फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएंगे और ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन हम रिएक्शन जीरो के मानते थे, तो हम ये मानते, हम ये क्वेश्चन में गिवन था कि 2 mm ही डिफॉर्मेशन होगा। अगर उसमें ऐसा होता कि 2 mm से ज़्यादा होता तो द क्वेश्चन वुड हैव बिकम ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेना है? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन होगा, तो पहले आप ये समझो कि जो बीसी ब्लॉक है, बीसी ब्लॉक है, इसका जो सी क्रॉस सेक्शन है, क्या इस पे कोई लोड लगा है? नहीं, इसके बी पे लोड लगा है, मतलब सिर्फ बी क्रॉस सेक्शन मूव करेगा। सी तो कोई, सी भी मूव करेगा लेकिन सी उतना ही मूव करेगा जितना बी मूव करेगा। इसमें किसी को डाउट है? क्यों बी उतना ही? क्यों? क्योंकि सी में कहीं भी कोई लोड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बी पॉइंट जितना मूव करेगा उतना सी मूव करेगा। तो अगर मैं इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम बनाऊँ इस कंडीशन में, यहाँ पे एक आर ए फोर्स है, मान सकते हैं। अब मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है, लेकिन इनसे आर ए का डायरेक्शन ये हो, ओके, आर ए का डायरेक्शन ये हो गया। अब देखो, आर ए का डायरेक्शन अगर ये हो गया तो इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम जो हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि दिस दिस लोड इज आर ए, दिस इज आर ए, और या फिर इधर से चलते हैं, पीछे से चलते हैं, ऑलवेज ऑन द फ्री एंड। यहाँ से चलें तो ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट पे कोई भी लोड नहीं है, सी से बी तक गया, बी तक कोई लोड नहीं आया, बी पे आया 30 किलोमीटर का टेंसाइल लोड। ये लोड गया। अब ए बी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन सी पॉइंट पे भी होगा। भाई जो डिफॉर्मेशन इन ए सी है वो किसके इक्वल हो सकता है? डिफॉर्मेशन इन ए बी प्लस डिफॉर्मेशन बी सी। बी सी में तो कोई लोड ही नहीं है, बी सी में तो कोई लोड ही नहीं है, ठीक है ना, बी सी में तो कोई लोड ही नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया। डिफॉर्मेशन ए बी के इक्वल हो जाएगा। ए बी के अंदर कितना होगा? पी एल बाई ए। पी कितना है? 30 × 1000। लेंथ कितनी है? 1 × 1000 mm। ऑलवेज राइट यूनिट्स विद द फॉर्मूला, never wrong, will not be never wrong। it is 100 and how much is E? 100 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये 100 भी mm स्क्वायर में था, इससे ये उड़ा, न्यूटन से क्या उड़ेगा? न्यूटन से न्यूटन उड़ा, बचा क्या? बचा mm। mm में आंसर आएगा इसका, कितना आएगा? अब देखो 30 × 1000 6 हुआ, जाएगा 3 आएगा, 3 mm। Always try to do the calculations by your mind, by your hand, until unless you didn't able to do, then you use the calculator। कैलकुलेटर मिलता नहीं है प्रीलिम्स में, तुम्हें पता ही है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन होता है तो एक छोटा सा ऐसा कुछ पूछ लेता, लेकिन अब डेल्टा जो है वो आएगा 3 mm, जो इसका 30 किलोमीटर की लोड की वजह से, जो 30 किलोमीटर का लोड है उसकी वजह से जो डेल्टा क्रिएट होगा वो 3 mm का डेल्टा क्रिएट होगा। बट बट but the problem is the allowable deformation always 2 mm because the gap is already, when this structure will come here and hit this support, इस support को जब टच करेगा ऐसे जाके, ये आपस में फोर्स लगाएंगे and that reaction अब reaction will be provided, तो मैं कह सकता हूँ कि फाइनली जाके ये कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। जब ये 2 mm डिफॉर्म हो जाएगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, समझ गए? 2 mm डिफॉर्म हो जाएगा तो ऐसा बनेगा कुछ, ए बी सी, और यहाँ एक फोर्स आएगी आर डी,
अब नाउ दिस क्वेश्चन हैव बिकम अ क्वेश्चन ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें दो फोर्सेस आ गई हैं और हमारे पास जो अननोन्स दो रिएक्शंस आ गए, पास अननोन हो गए हैं हमारे पास दो, और हमारे पास रिएक्शन है सिर्फ एक, और डायरेक्शन में रिएक्शन जीरो. सो we'll use the compatibility equation. Why not the direct? Why not direct? Because AE जो है AE and 2AE, A1 E1 not equal to, since A1 A2 E2, we can't use direct और shortcut. क्या करना पड़ेगा? We have to use the full things. पहले तो लगाओ summation in horizontal कह लो यार, vertical करो, जो आपका मन करे. वर्टिकल भी कह सकते, वर्टिकली कह लो. इफ यू अरेंज दिस वर्टिकल वाई एक्सिस, दिस एक्सिस वर्टिकल कह सकते हैं. प्लस आर ए माइनस 30 प्लस आर डी इक्वल टू 0. यहाँ से आर ए प्लस आर डी आ गया 30 किलो न्यूटन. दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ कमिंग टू कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या हो जाती है? नॉर्मली अगर दोनों फिक्स्ड होते हैं तो वी टेक द डेल्टा जीरो, बट इस केस में डेल्टा जीरो नहीं होगा, दोनों फिक्स्ड हैं लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके फिक्स होंगे. मतलब कितना डिफॉर्मेशन होने के बाद फिक्स हो जाएंगे? डेल्टा इन ए सी वैन 2 mm हो जाएगा. 2 mm तक परमिसिबल है ए सी में डिफॉर्मेशन. जीरो नहीं है, ए सी में जीरो नहीं होगा, 2 mm तक परमिसिबल है. लेकिन लोडिंग अब डेल्टा इजी हो गया क्या? डेल्टा इन ए बी प्लस डेल्टा इन बी सी इक्वल टू 2 mm. अब अगर हम इसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम से लोडिंग, तो यहाँ पे लोड पहले क्या है? आर ए प्लस का आर ए, देन वी हियर वी गो दिस, एंड आफ्टर 30 किलोन्यूटन लोड वी आर हैविंग, सो वी गेट लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस वी आर हैविंग आर ए माइनस 30, दिस इज आर ए माइनस 30. ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. नाउ इन डेल्टा ए बी द फोर्स कितना हो जाएगा? आर ए. लेंथ कितना है उसका? एल, जो कि 1000 mm है, इंटू ए ई प्लस आर ए माइनस 30, अगेन लेंथ इज 1000 mm इंटू 2a इक्वल टू कितना है ये? 2 mm के. ओके, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि आर ए डिवाइडेड प्लस आर ए माइनस 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2AE अपॉन 1000. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये 1000 को मैं इधर ले आया नीचे, और टू मैंने जो टू से जोड़ा, ए को मल्टीप्लाई कर दिया. Now we are having this equation is here. Okay. Now we can write RA plus RA minus 2RA 30 into 1000 equal to this will be equal to 2 into 2 into area is 100 mm square. E is, how much is E? E is also 100 gigapascal, so 100 into 1000 megapascal हो गया ये, डिवाइड बाई 1000. 1000 में 1000 क्या है? ये बचा 4 इंटू 10⁻⁴, और यहाँ बचेगा आपका 3RA माइनस 3 इंटू माइनस 4, 3RA. ना इतना आ गया. इसके बाद क्या होगा? 3RA इक्वल टू 7 4 RA इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 3 इंटू 1000 23.33 किलोमीटर. ओके, similarly you can find what we from the first equation you can find RD equal to 30 minus 6 point, sorry this 30 minus 23.33 is 6.67. so reactions हमारे पास आ गई दोनों. reaction support पे पूछे क्वेश्चन में, तो these are the answers. It's a very good question. okay, so I'll give you 2 questions for homework. These are very good questions. I think that you should try them. Very good questions. I'm giving you for homework. I'm giving you the answers, so don't worry. But you should at least try them. Okay, they're very good questions. In your college, when you get the free time, sitting and doing nothing, there are a lot of subjects in 3rd year 4th year जिसमें कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, तो वहाँ जाकर करते रहो पीछे बैठ के. यार टाइम निकालना पड़ेगा सब चीज़ के लिए. यू वांट टू बी एट गुड प्लेस, सब तो टाइम तो निकालना पड़ेगा. अच्छी जगह जाना है तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा टाइम. मैं कैसे टाइम निकालूँ अपने लिए?
कि मैं कर सकूँ ये सब. ओके, दिस इज 2p, this is 3p, this is a comma e, this is 2a comma e, this is again a comma e. So you have to find the reaction at supports be sigma max. Just for information, this is L, this is L, this is also L. ओके, सो अगर आपको चाहिए इसके आंसर्स, मैं आपके आंसर्स बता देता हूँ. आंसर्स विल बी रिएक्शन एट सपोर्ट्स आएंगी आर इक्वल टू 2.4 पी, पी के टर्म्स में आएगा ऊपर का तरफ, आर बी आएगा, सॉरी आर डी आएगा, डी. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट. आर डी आएगा 2.6 पी प्लस सिग्मा मैक्स आएगा 2.6 p by a. These are the answers. You should try this question. If you are not able to get the answer, you can contact me anyhow and I'll give you the solution, complete solution of this. I'll make you understand that how this is solved. Okay. Next question. This is steel which is having E equal to 210 gigapascal. This is aluminum which is having E of aluminum equal to 70 gigapascal. Now determine the value of P. Determine the value of P to produce tensile strain. Determine the value of P to produce tensile strain of magnitude 10 raised to power minus 6 in steel part. Area is 1 meter square. देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट है ना, ये टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा 10 और माइनस 6 का. ए पॉइंट तो मूव हो नहीं सकता, सिर्फ बी पॉइंट मूव हो सकता है, और इसको कौन मूव करेगा? ये कह रहा है कि बेसिकली ए बी में जो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा, स्टील में जो टेंसाइल वो आएगा 10 माइनस 6 के. तो अब वो क्या करना है, इसमें बेसिकली पहले निकालनी है रिएक्शंस. अब इसमें ए वाला वो लग नहीं सकता क्योंकि इसका ई अलग है, ए कॉन्स्टेंट ए. तो आप क्या नाम है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ करना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बराबर करना, रिएक्शंस को, तो आपको वहाँ से रिएक्शंस निकल आएंगे दोनों. वंस यू फाइंड आउट द रिएक्शन यूजिंग द रिएक्शन ऑफ ए बी, you should find delta in there. You'll find the elongation in there. Okay, in the terms of P, elongation. अब elongation 10 minus 6 नहीं है, strain है, तो elongation divided by its length L. elongation divided by its length L. जो elongation आएगा ना वो P और L के टर्म्स में ही आएगा आपका. L से L कट जाएगा, सिर्फ P रह जाएगा अननोन वेरिएबल, उसको इक्वलाइज कर देना 10 minus 6 के, और आपका जो आंसर आएगा, your answer will be equal to P equal to 280 किलो न्यूटन. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए P इक्वल टू 280 किलो न्यूटन का. अगर ये आपका आंसर आता है तो इट मीन्स यू हैव डन दिस क्वेश्चन करेक्टली. ओके, और वी विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ इट. अंटिल देन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. और अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके जो गेट में और ईएससी में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट का हमारा एक्सेल लोडिंग डायग्राम्स खत्म हो चुका है. स्ट्रेस एंड स्ट्रेस के पार्ट में बेसिकली हम काफ़ी आगे जा चुके हैं. स्ट्रेन वी हैव नॉट डिस्कस्ड येट, विल डिस्कस इट. कल मैं आपको थोड़े से 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, वो स्प्रिंग बेसिस और बार बेसिस पे होंगे कि कैसे उनका एलोंगेशन निकालते हैं, कंपैटिबिलिटी यूज़ करते हैं उसमें. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बार्स इन पैरेलल. उसके हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 मैं आपको होमवर्क में दे दूँगा. दैट विल कवर एंड आफ्टर दैट विल गो ओवर एंड अगेन. After that, our major topics, shear force and bending moment diagram, reflection of the beams, these are yet to be covered and are very interesting topics.